Hello and welcome. Welcome to the series of how organs interact with each other. In the series of the relationship of heart with other organs, we have already covered the relationship of heart with lungs, relationship of heart with spleen, and relationship of heart with kidneys. So in this video, we will understand heart's relationship with liver. So heart is a fire element and liver is a wood element. So this is a fire and wood relationship. Now we will understand how they interact. The heart governs blood while the liver stores and regulates blood volume. Together they ensure proper blood circulation and emotional stability. The heart is the central driving force behind the circulatory system, responsible for pumping blood throughout the body. The liver helps regulate blood volume by storing the blood when the body is at rest and releasing it when it is needed. Now, they both together make sure that the blood circulation is proper and that there is emotional stability. The next way they interact is the heart houses the Shen, that is the mind, while the liver houses the Hun, that is the ethereal soul. Now, they both are crucial for mental clarity, decision making, and creativity. Did you know that in TCM we have not just one, but we have 5 types of spirits? Now, these 5 types of spirits guide our mind, body, and soul. So, what are the 5 types of spirits? We have Shen, we have Hun, we have Po, we have Yi, and we have Zi. Now, out of these 5 spirits, Shen is the main spirit, which resides in heart. Now, it is your consciousness, your thoughts, your awareness. No, so when Shen is strong, you feel calm, clear, and connected. If imbalanced, you may experience anxiety, insomnia, or a sense of disconnection from yourself as well as others. The next is Hun. Now, Hun is the ethereal soul. Now, Hun lives in liver. Now, Hun is your dreams, your creativity, and your intuition. It helps you plan and envision your future. It helps you to see your future and plan your future. Po is the corporeal soul. Po resides in lungs. Now, it is your instinct and physical sensations like the feeling of breath or a gut reaction. So, this is the Po. Then Yi is the intellect. Now, Yi is housed in the spleen. It is your ability to focus, memorize, and analyze information. Then comes Z. Now, Z is the willpower. Now, Z lives in kidneys. It's your drive, determination, and long term memory. It is your inner strength. Now, these 5 spirits they work together to keep your body, mind, and soul in harmony. Now, balanced spirits means a balanced life. In this video, we will talk about Shen and Hun. In some other video, maybe I will cover all the 5 spirits. So, if Shen is balanced, you feel present, peaceful, and emotionally steady. But if it is imbalanced, you may experience anxiety, insomnia, or a sense of disconnection from yourself as well as others. And if Hun is balanced, you dream big, you plan well, and feel inspired. But if it is imbalanced, you feel lost, stuck in the past, or have disturbed sleep and nightmares. So, having said that, Shen and Hun both are crucial for mental clarity, decision making, and creativity. The next is the heart's fire provides warmth for liver chi to flow smoothly, while the liver's smooth chi movement ensures the heart remains calm and stable. Means for the heart to remain calm and stable, liver chi is responsible. So, if the liver chi flows smoothly, the heart remains calm and stable. And for the liver chi to flow smoothly, heart fire provides the warmth. So they both are interdependent. Next is
Emotional strain, excessive stress, or blood deficiencies can disturb the delicate balance. So, whenever there is emotional strain or excessive stress or blood deficiencies, it can disturb this balance. अब इसे हम हिंदी में समझते हैं. हार्ट फायर एलिमेंट है और लिवर वुड एलिमेंट है, तो ये फायर एंड वुड रिलेशनशिप हुआ. ठीक है. अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. हार्ट और लिवर किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं. सबसे पहले है द हार्ट गवर्न्स ब्लड while द लिवर स्टोर्स एंड रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम. टुगेदर दे एंश्योर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी. लिवर का काम है ब्लड को स्टोर करना और हार्ट ब्लड को गवर्न करता है. ये दोनों मिलके ही ये देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे और इमोशनल स्टेबिलिटी रहे. हार्ट सेंट्रल ड्राइविंग फोर्स है सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में, और लिवर ब्लड को स्टोर करता है. जब हम रेस्ट करते हैं तो वो स्टोर करता है, और जब ज़रूरत होती है तो वो रिलीज़ करता है. इस तरह से लिवर जो है ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है. नेक्स्ट है कि शन जो है वो हार्ट में रहता है ना, और लिवर में खून रहता है. ये दोनों ही ज़रूरी है, किस लिए? मेंटल क्लैरिटी के लिए, डिसीजन लेने के लिए और क्रिएटिविटी के लिए. क्या आपको पता था कि टीसीए में हमारे पास एक नहीं बल्कि 5 स्पिरिट्स है, 5 टाइप के स्पिरिट्स है ना. कौन से हैं? शन, हुन, पो, ये और जी. ये पांचों स्पिरिट हमें गाइड करते हैं, हमारे माइंड को, बॉडी को और सोल को गाइड करते हैं. शन जो है, पांचों में से शन जो है ये हमारा मेन स्पिरिट है ना. शन हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारे थॉट्स हैं, हमारी अवेयरनेस है. अगर शन स्ट्रांग होगा तो हम काम महसूस करेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे, नहीं तो लगेगा कि हम अकेले हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, अलग अलग रहेंगे. और अगर शन वीक होगा तो घबराहट महसूस होगी, इनसोम्निया होगा, खुद से डिस्कनेक्टेड फील होगा और औरों से भी डिस्कनेक्टेड फील होगा. हुन क्या है हमारा? शन हार्ट में रहता है, हुन हमारा लिवर में रहता है. हुन इथीरियल सोल है, ये हमारे लिवर में रहता है ना. और ये आपके ड्रीम्स, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन है. हुन ही आपके फ्यूचर प्लान करने में आपकी मदद करता है, फ्यूचर देखने में हेल्प करता है. अगर हुन बैलेंस्ड होगा तो आप बड़े बड़े सपने देख सकते हैं, कुछ बनने की, कुछ करने की इच्छा होती है, अच्छी तरह प्लान कर सकते हैं अपना फ्यूचर, और हमेशा एक चाह होती है कुछ कर दिखाने की. लेकिन अगर हुन इम्बैलेंस्ड होगा तो आप खोए खोए से रहेंगे, नींद भी प्रॉपर्ली नहीं आएगी, रात में डर जाओगे, डरे डरे से रहोगे हमेशा, और पास्ट में ही स्टक रहोगे. नेक्स्ट है हमारा पो. पो क्या है? कॉर्पोरियल सोल है, और ये कहाँ रहता है? लंग्स में रहता है. शन हमारा हार्ट में रहता है और हुन हमारा लिवर में रहता है. पो क्या है? ये हमारे इंस्टिंक्ट्स है, हमारे फिज़िकल सेंसेशंस है. सेंसेशंस जैसे कि हम जब सांस लेते हैं तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, या हमारे गट का जो रिएक्शन है उसको हम महसूस कर सकते हैं. नेक्स्ट स्पिरिट है हमारा ये क्या है? इंटेलेक्ट है. ये कहाँ रहता है? ये स्प्लीन में रहता है. सो ये क्या है? ये आपकी एबिलिटी है, एबिलिटी टू फोकस है ना, मेमोराइज करने की एबिलिटी, एनालाइज करने की, इंफॉर्मेशन एनालाइज करने की एबिलिटी, ये हमारा ये है. लास्ट है हमारा जी क्या है? विल पावर. ये कहाँ पे रहता है? ये किडनीज में रहता है. और ये जी क्या है? ये आपका ड्राइव है, ये आपका डिटर्मिनेशन है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये आपका इनर स्ट्रेंथ है. तो ये 5 स्पिरिट इकट्ठे काम करते हैं हमारे बॉडी, माइंड और सोल को हार्मनी में रखने के लिए. तो बैलेंस स्पिरिट्स होगा, इसका मतलब कि हमारी लाइफ बैलेंस्ड है. तो इस वीडियो में हम सिर्फ शन और हुन के बारे में ही बात करेंगे. किसी और वीडियो में हम पांचों स्पिरिट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे. तो शन और हुन ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, किस लिए? मेंटल क्लैरिटी के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना, और क्रिएटिविटी के लिए. ये दोनों बैलेंस्ड होंगे तो हम निर्णय ले पाएंगे, मेंटल क्लैरिटी रहेगी, पता होगा हमें क्या करना है, कब करना है, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, कुछ नई नई चीज़ें करने का मन करेगा, और हम हमेशा
हमारे काम में क्रिएटिविटी नज़र आएगी। नेक्स्ट कनेक्शन है कि हमारा हार्ट काम और स्टेबल रहता है अगर लिवर ची की मूवमेंट स्मूथ हो, सही हो, नॉर्मल हो, और लिवर ची स्मूथली कर पाए, इसके लिए हार्ट वार्मथ प्रोवाइड करता है। तो आपने देखा कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। नेक्स्ट है इमोशनल स्ट्रेन, एक्सेसिव स्ट्रेस और ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से ये जो बैलेंस है ये बिगड़ जाता है। Now we understood how liver and heart interact. Now let us understand the imbalance patterns between the relationship of heart and liver. So the first imbalance would be if the liver chi stagnates, the heart fire rises up. What are the causes of liver chi stagnation? Well, prolonged stress or deliberately making an effort to suppress, ignore, or distract ourselves from experiencing certain emotions or hold back your emotions, this leads to liver chi to stagnate. Now, when the liver chi stagnates, the heart fire rises up. Why? Because when the liver chi becomes stagnant, which is due to the stress or frustration or lack of emotional expression, this stagnation can generate internal heat. Now, this excess heat then rises up and disturbs the heart, causing emotional agitation and deep disturbances. And obviously, when the heart will be disturbed, it will create agitation, anger, and frustration. Other symptoms also will be noticed like irritability, mood swings, palpitation, anxiety, insomnia, with vivid dreams or nightmares. Even chest tightness, headaches, and dizziness will also be seen. So, in this condition, our focus should be to soothe the liver chi, to prevent heart fire from rising up, from flaring up, and calm the heart to stabilize emotions and improve sleep. अब हमने ये समझ लिया कि हार्ट और लिवर एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि हार्ट और लिवर के रिलेशनशिप में किस टाइप के इम्बैलेंसेस आएंगे। तो सबसे पहला है कि लिवर ची जब स्टैग्नेट होगा तो हार्ट फायर राइज होगा। लिवर ची स्टैग्नेट क्यों होगा? जब कोई अपने इमोशंस को रोकता है, बहुत लंबे समय से अगर वो स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेशन है, अपने इमोशंस को दबा के रखता है, इन सब चीज़ों की वजह से लिवर ची स्टैग्नेट हो जाती है। और जब लिवर ची स्टैग्नेट होती है तो हार्ट फायर राइज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर फ्रस्ट्रेशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से अपने आप को अगर पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपने इमोशंस को दबाता है, तो लिवर ची स्टैग्नेट हो जाती है। और जब लिवर ची स्टैग्नेट हो जाती है तो लिवर ची फ्लो नहीं करती है। तो जब फ्लो नहीं करती है तो क्या होता है? इंटरनल हीट जनरेट होता है, और जब बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। ये हमने देखा हुआ है, हमने समझा हुआ है कि जब भी हीट बढ़ती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। तो जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो हार्ट को वो डिस्टर्ब कर देती है। तो इमोशनली पर्सन क्या हो जाएगा? एजिटेटेड रहेगा, उसे गुस्सा बहुत आएगा और उसका मन बहुत परेशान रहेगा। और भी सिम्टम्स आएंगे जैसे चिड़चिड़ापन रहेगा, मूड स्विंग्स होगा, पैल्पिटेशन होगा, घबराहट होगी, है ना, रेस्टलेसनेस होगा, और इंसोम्निया होगा, नींद नहीं आएगी, और जब आएगी तो सपने आएंगे। वो सपने बहुत डरावने भी हो सकते हैं, है ना। चेस्ट में टाइटनेस होगा, हेडेक्स होगा और चक्कर भी आएंगे। तो ऐसे में हमारा काम क्या है कि हम लिवर ची के फ्लो को स्मूथ करें, है ना, ताकि हार्ट फायर ना बढ़ पाए। सेकेंडली, हमने हार्ट को काम करना है ताकि वो जो हमारे इमोशंस है वो स्टेबलाइज हो जाए और हमारी नींद जो है वो इम्प्रूव हो जाए। नाउ इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न वी कैन अप्लाई these acupuncture points. So we can apply liver 3 to soothe the liver chi, relieve tension and reduce irritability. We can apply pericardium 6 which will calm the heart, relieve palpitation and stabilize the emotions. We can apply heart 8 which will clear the heart fire and calm the shen. We can apply Li4 which can release the stagnation and promote smooth chi flow. Now these are the names of diseases in medical science which comes under this pattern, like hypertension with emotional stress, anxiety and panic attacks,
insomnia linked to stress and emotional tension, irritable bowel syndrome, especially with emotional triggers. तो इस पैटर्न के लिए हम ये एक्यूपंक्चर पॉइंट्स लगा सकते हैं। लिवर जी को स्मूथली फ्लो कराने के लिए और टेंशन रिलीव करने के लिए और इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम लिवर 3 लगा सकते हैं। हार्ट को काम करने के लिए, पैल्पिटेशन को रिलीव करने के लिए और इमोशंस को स्टेबलाइज करने के लिए हम पेरिकार्डियम 6 लगा सकते हैं। और हार्ट 8 हम लगा सकते हैं हार्ट फायर को क्लियर करने के लिए और शेन को काम करने के लिए। LI 4 हम लगा सकते हैं जो स्टैग्नेशन को रिलीज़ करेगा और जो ची का जो फ्लो है उसको स्मूथ करेगा। ये कुछ डिजीज़ के नाम हैं जो मेडिकल साइंस में आते हैं, जो इस पैटर्न में आते हैं। वो है हाइपरटेंशन विद इमोशनल स्ट्रेस, मतलब हाइपरटेंशन हो जो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो वो इस पैटर्न में आएंगे। घबराहट हो, पैनिक अटैक्स हो, वो इस पैटर्न में आएंगे। इंसोम्निया हो, है ना, स्ट्रेस की वजह से या इमोशनल टेंशन की वजह से, वो इस पैटर्न में आएंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अगर है, मतलब जो इमोशनल ट्रिगर से हो जाए, वो भी इस पैटर्न में आएंगे। नाउ द पॉइंट्स आर प्लॉटेड हियर. We can take one fenugreek seed, apply it on the doctor tape and stick it on these points. Apply the points for at least 8 to 10 hours per day and apply it till you get relief. Say for 15 days, 20 days, for a month or till you get relief. ये acupuncture points plotted है। हमने क्या करना है, एक मेथी दाना लेना है, डॉक्टर टेप के ऊपर इस तरह से चिपका लेना है और इन पॉइंट्स के ऊपर लगा लेना है ना। और उसको हमने 8 से 10 घंटे लगाना है, 15-20 दिन, या जब तक आराम ना आए सिम्टम्स में, हमने तब तक ये पॉइंट्स लगाना है। सो द नेक्स्ट पैटर्न इज if the liver blood is deficient, heart blood will also become deficient. Now, why will the liver blood become deficient? What are the causes? Chronic stress, poor diet or overwork will lead to liver blood deficiency. And when the liver blood is deficient, heart blood will also become deficient. Why? Because as we understood that liver stores blood and regulates its flow. So if liver blood becomes deficient, it will not be able to nourish the heart, which will weaken the heart blood. But if heart lacks sufficient blood, liver may fail to store enough blood and liver will not be able to nourish the heart. This way, heart blood will become deficient. Now, this will result in emotional instability, anxiety and mental fatigue. Many more symptoms also we can see, like we will see palpitations, dizziness, anxiety as I told you, poor memory, lack of focus and restless sleep can be noticed. Even dry eyes, blurred vision or brittle nails also can be seen. Pale complexion, numbness or muscle cramps will also be seen. So in this case, our focus should be to nourish the liver blood, to strengthen the heart blood, improve digestion to enhance nutrient absorption and blood production. नेक्स्ट सिम्टम है, अगर लिवर ब्लड डेफिशिएंट होगा तो हार्ट ब्लड भी डेफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिवर ब्लड डेफिशिएंट क्यों और कब होगा। जब लगातार स्ट्रेस बना रहे, डाइट अच्छी ना हो, या व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करता हो, इन सब कारणों की वजह से लिवर में ब्लड की कमी हो जाती है। और जब लिवर ब्लड डेफिशिएंट हो जाएगा तो हार्ट ब्लड भी डेफिशिएंट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लिवर ब्लड को स्टोर करता है और ब्लड के फ्लो को भी रेगुलेट करता है। लेकिन अगर लिवर में ब्लड की कमी हो जाएगी तो वो हार्ट को प्रॉपर्ली नरिश नहीं कर पाएगी, हार्ट को प्रॉपर्ली ब्लड नहीं मिल पाएगा। लेकिन लिवर ब्लड तब स्टोर कर पाएगा जब हार्ट में सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड रहेगा, है ना। तो देखा आपने कि कैसे एक दूसरे के ऊपर ये दोनों ही निर्भर हैं। तो जब हार्ट में ब्लड की कमी हो जाएगी तो बेचैनी होगी, है ना, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी, मेंटल फटीग होगा और भी बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आएंगे, जैसे दिल का तेज धड़कना, चक्कर आना, घबराहट होना, पुअर मेमोरी होना, लैक ऑफ फोकस होना, रेस्टलेस स्लीप होना, आंखें ड्राई हो जाएंगी, विजन भी ब्लर हो जाएगा, धुंधला दिखेगा, नाखून भी बहुत ब्रिटल हो जाएंगे, है ना, टूटते रहेंगे, कॉम्प्लेक्शन पेल होगा, नंबरनेस होगा और मसल क्रैम्प्स भी होंगे।
तो ऐसे में हमारा फोकस होना चाहिए कि हम लिवर ब्लड को नरिश करें ताकि हमारा हार्ट ब्लड स्ट्रेंथन हो सके, डाइजेशन को इम्प्रूव करें ताकि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो और ब्लड का प्रोडक्शन भी अच्छी तरह हो. So for this particular imbalance, we can apply spleen 6, which will tonify the liver and spleen to improve blood production. Liver 8, which will strongly nourish the liver blood. Heart 7, which will calm the mind, improve sleep, and strengthen the heart blood. Urinary bladder 17, which will boost the blood and nourish the blood. Stomach 36, which will boost the chi and blood production to alleviate fatigue. Now these are the names of the diseases in medical science which comes under this pattern, like anemia, chronic fatigue syndrome, anxiety and panic disorder, menstrual disorders with scanty flow will come under this pattern. तो इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए हम ये एक्यूपंक्चर पॉइंट लगा सकते हैं. हम स्प्लीन 6 लगा सकते हैं जो लिवर को टोनिफाई करेगा, स्प्लीन को टोनिफाई करेगा और ब्लड के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेगा. लिवर ब्लड को नरिश करने के लिए हम लिवर 8 लगा सकते हैं. मन को शांत करने के लिए, माइंड को शांत करने के लिए, स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए और हार्ट ब्लड को स्ट्रेंथ देने के लिए हम हार्ट 7 लगा सकते हैं. हम यूरिनरी ब्लैडर 17 लगा सकते हैं जो ब्लड को बूस्ट करेगा और नरिश करेगा. हम स्टमक 36 लगा सकते हैं जो ची को बूस्ट करेगा और ब्लड प्रोडक्शन को भी बूस्ट करेगा और फटीग को दूर करेगा. और ये कुछ मेडिकल साइंस में कुछ नेम्स है डिजीज़ के जो इस पैटर्न में आते हैं. वो है अनीमिया, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, एंग्जाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स विद स्कैंटी फ्लो. ये सारे डिजीज़ इस पैटर्न में आते हैं. The points are plotted on the Buell meridian. So take a fenugreek seed, apply it on a paper tape like this and apply it on these points. Apply it for 8 to 10 hours per day and apply till you get relief from the symptoms. ये पॉइंट्स हैं एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो अभी मैंने बताए, उसको हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं. एक मेथी दाना लेके पेपर टेप के ऊपर हम इस पॉइंट्स के ऊपर लगाएंगे और इसको हम लगाएंगे कुछ 8 से 10 घंटे के लिए और कम से कम 15 या 20 दिन है, जब तक सिम्टम्स में आराम ना मिले तब तक हम ये पॉइंट्स लगाते रहेंगे. द नेक्स्ट पैटर्न इन दिस रिलेशनशिप इज लिवर फायर इन्वेडिंग द हार्ट. When does fire increase in liver? When a person suppresses his anger, does not bring it out. The reason can be any. Or if the person is not able to control his emotions, has emotional outbursts, or if the person has chronic stress, in all these conditions, the liver fire will increase. Then this fire will invade the heart. It will enter the heart. This fire will disturb the heart. It will disturb the shen. And it will cause intense emotional disturbances. It will also cause intense anger, irritability, frustration. There will be burning chest pain. There will be palpitation. There will be bitter taste. The face will be red. The eyes will be red. The mouth will be dry. There will be insomnia with excessive dreaming or nightmares. So in this condition, our focus should be to clear the liver fire so that we can protect the heart. And also we should calm the shen to restore the mental peace. अगला पैटर्न है लिवर फायर इन्वेडिंग द हार्ट. जब लिवर में फायर बढ़ेगी तो वो हार्ट में जाएगी. क्या कारण है? लिवर फायर कब बढ़ेगी? जब हम अपने गुस्से को रोकते हैं, गुस्से को पी जाते हैं और अचानक से इमोशंस जब बाहर आ जाते हैं, जैसे वैसे तो हम चुप होंगे बट सडनली रिएक्शन देंगे, या काफ़ी लंबे समय से स्ट्रेस में होने से भी लिवर में फायर बढ़ जाता है और ये फायर हार्ट में जाता है. हार्ट में जाने से ये शन को डिस्टर्ब कर देता है. जब शन डिस्टर्ब हो जाता है तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं. और भी हमको सिम्टम्स नज़र आते हैं जैसे बहुत इंटेंस एंगर, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब नज़र आएंगे. इवन चेस्ट में बर्निंग पेन होगा, पैल्पिटेशंस होंगे, मतलब कि दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी, टेस्ट जो कड़वा हो जाएगा, फेस एकदम रेड हो जाएगा, लाल आंखें हो जाएंगी, मुंह सूखा सूखा रहेगा, नींद नहीं आएगी और एक्सेसिव ड्रीमिंग, बहुत ज़्यादा सपने आएंगे और एकदम से नाइटमेयर होगा, डर जाएगा इंसान.
तो ऐसे में हमारा फोकस होना चाहिए कि हम लिवर फायर को पहले क्लियर करें ताकि हम हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, है ना, और शन को हम काम कर सकें ताकि मेंटल पीस बना रहे. So what acupuncture points we will apply in this pattern? We can apply liver 2, which will clear the liver fire and calm the agitation. We can apply gallbladder 20, which will dispel the liver fire, which is rising to the head. We'll also apply heart 8, which will clear the heart fire and relieve anxiety. We will apply pericardium 8, which will strongly cool the heart fire. We will apply DU 24, which is also called as governing vessel 24, which will calm the shen and relieve anxiety. Now these are the diseases in medical science which comes under this pattern, like hypertension with agitation, insomnia with irritability, migraines or tension headache will come under this pattern, heart palpitations triggered by emotional stress will come under this pattern. अब इस पैटर्न के लिए हम कौन सा एक्यूपंक्चर पॉइंट लगा सकते हैं? लिवर फायर को क्लियर करने के लिए और एजिटेशन को शांत करने के लिए हम लिवर 2 लगा सकते हैं. हम गॉलब्लैडर 20 लगा सकते हैं. ये पॉइंट से हम लिवर फायर जो सिर तक जा रही है उसे दूर कर सकते हैं. हम हार्ट 8 लगा सकते हैं जो कि हार्ट के फायर को क्लियर करेगा और एंग्जाइटी को रिलीव करेगा. हम पेरिकार्डियम 8 लगा सकते हैं जो हार्ट फायर को कूल करेगा. हम DU 24 मतलब गवर्निंग वेसल 24 लगा सकते हैं जो शन को काम करेगा और एंग्जाइटी को रिलीव करेगा. और ये कुछ डिजीज़ हैं जो मेडिकल साइंस में आते हैं, जो ये पैटर्न में आते हैं. तो हाइपरटेंशन विथ एजिटेशन, insomnia with irritability, migraines और tension headaches, heart palpitation triggered by emotional stress, ये diseases इस pattern में आते हैं. The acupuncture points which I mentioned are plotted on the palm, so you can take a doctor tape and apply one fenugreek seed and apply on these points. So we can apply these points for at least 8 to 10 hours in a day and till you get relief from the symptoms. एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो अभी बताए थे वो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है ब्योल मेरिडियन पे. तो हम एक मेथी दाना लेंगे, डॉक्टर टेप के ऊपर चिपकाएंगे और उसको इस पॉइंट्स पे लगाएंगे. दिन में 8 से 10 घंटा लगाना है और तब तक लगाना है जब तक सिम्टम्स में आराम ना मिले. द नेक्स्ट पैटर्न इज इफ़ द हार्ट yin is deficient, liver yang will rise. Now what are the causes of heart yin deficiency? Doing excessive work, excessive stress, or if since long time there is anxiety, these reasons make the heart yin deficient. And when the heart yin is deficient, the liver yang will rise. Because when the heart yin becomes deficient due to stress or overwork, the liver yang will rise unchecked, leading to headaches, dizziness. We will also see palpitations, anxiety, insomnia, dry eyes, blurred vision, tinnitus, irritability, and sudden emotional outbursts. Even dizziness, headaches, and lightheadedness will also be noticed. So in this case, our focus should be to nourish the heart yin, to anchor the liver yang, calm the liver to stabilize emotions. Next pattern है, जब हार्ट yin deficient होगा तो लिवर यांग राइज करेगा. हार्ट yin कब deficient होगा? जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत लंबे समय से बेचैनी हो रही है, हम इन सब कारणों की वजह से हार्ट की yin डेफिशिएंट हो जाती है. और जब हार्ट की yin डेफिशिएंट हो जाती है तो लिवर की यांग राइज हो जाती है. क्यों? क्योंकि जब हार्ट yin डेफिशिएंट होता है स्ट्रेस की वजह से या बहुत ज़्यादा काम करने से, तो लिवर यांग को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता. और जब लिवर यांग बढ़ जाती है तो चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, इमोशनली इंसान वीक हो जाता है. और भी सिम्टम्स आते हैं जैसे कि दिल का तेज़ धड़कना, घबराहट, इंसोम्निया, ड्राई आइज़, धुंधलापन, कानों में आवाज़ आना, चिड़चिड़ापन और एकदम से इमोशनल आउटबर्स्ट नज़र आते हैं. तो ऐसे में हमारा फोकस होना चाहिए कि हम हार्ट yin को नरिश करें ताकि वो लिवर यांग को कंट्रोल कर सके और लिवर को काम करे ताकि वो हमारे इमोशंस स्टेबलाइज हो सके, स्टेबल हो सके. So for this pattern we can apply kidney 6,
which will nourish the yin and moisten the dryness. We can apply heart 7, which will calm the shen and nourish the heart yin. We can apply liver 3, which will control the liver yang rising. We can apply spleen 6, which will nourish the liver, kidney and heart yin. We can apply gallbladder 20, which will give relief in headache caused by liver yang rising. Now these are the names of the diseases in medical science which comes under this pattern, like hypertension with anxiety and restlessness, chronic migraines or tension headache will come under this pattern. Insomnia with vivid dreams will come under this pattern. Menopausal hot flashes and night sweats will come under this pattern. तो इस पैटर्न के लिए हम कौन से पॉइंट्स लगा सकते हैं? हम किडनी 6 लगा सकते हैं ताकि यिन को नरिश कर सके और ड्राइनेस को नमी प्रदान कर सके. हम हार्ट 7 लगा सकते हैं जो शन को काम करे और हार्ट यिन को नरिश करे. हम लिवर 3 लगा सकते हैं ताकि वो लिवर यांग जो राइज हो रही है उसको कंट्रोल कर सके. हम SP6 लगा सकते हैं जो लिवर को, किडनी को और हार्ट के यिन को नरिश कर सके. हम गॉल ब्लैडर 20 लगा सकते हैं जो हेडेक होती है, जो हेडेक लिवर यांग राइजिंग की वजह से हो रही है, उसमें रिलीफ मिल सके. और ये कुछ नाम है डिजीज़ के जो इस पैटर्न में आते हैं, जो मेडिकल साइंस में है, जैसे कि हाइपरटेंशन विथ एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस, क्रोनिक माइग्रेन्स और टेंशन हेडेक्स जो है वो इस पैटर्न में आते हैं. इंसोम्निया विद विविड ड्रीम्स इस पैटर्न में आएंगे. मेनोपॉजल एंड हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स इस पैटर्न में आएंगे. The points are plotted here. So just take one fenugreek seed, apply it on the doctor tape, apply it on these points, apply it for 8 to 10 hours and apply it for at least 15 to 20 days or till you get relief. जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो मैंने प्लॉट किया हुआ है. तो हमने एक मेथी दाना लेना है और डॉक्टर टेप के ऊपर चिपका के इन पॉइंट्स के ऊपर लगाएं और इसको हम 8 से 10 घंटे दिन में लगाएंगे और तब तक लगाएंगे जब तक सिम्टम्स में आराम ना मिले. दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हार्ट्स रिलेशनशिप विथ सम अदर ऑर्गन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.